اگر ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت ہمیں ملتی ہے، آیت نمبر 222، اس میں ہمیں حیض کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب حیض کے اوقات کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کے ایام کیا ہیں، اس کی حالت کیا ہے وغیرہ، اس سے متعلق لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندی چیز ہے، اور مردوں کو یہ حکم دیا گیا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ یہ جو حیض کے دن ہیں اس میں اپنی عورتوں سے علیحدہ رہیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آیت آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 222 ہے یہ۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے اس باب میں، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں انصار کی عورتوں کے بارے میں، ان کا قول ہے کہ انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں۔ کیوں کہا بہترین عورتیں ہیں؟ کہ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ حیا ان کو نہیں روکتی ہے کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ کے لیے حیا ان کو آڑے نہیں آتی ہے، درمیان میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن کریم نے اس میں ذکر ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ وہ انصار کی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کی تعریف کرتی ہیں کہ وہ حیا نہیں کرتی ہیں شریعت کو سیکھنے میں۔ حیا اگر ہم رکھیں گے، آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہوگا لیکن آپ یہاں پہ گروپ میں نہیں پوچھ پائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ انسان خطا کرتا رہے گا، غلطی کرتا رہے گا، اور انسان اسی حالت میں اپنی زندگی ناپاکی یا جہالت کی حالت میں انسان زندگی بسر کرے گا۔ لہٰذا آپ کی طرف سے جو بھی ڈاؤٹ ہوگا، جو بھی کوشچن ہوگا، بالکل آپ حیا کے بغیر ان تمام چیزوں کو پوچھیں، اور ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے بھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سب سے پہلے لفظ ہے حیض، عربک کا ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہے، اس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھیں گے، فلو، ٹھیک ہے، بہنا ہے اس کے معنی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا الف ضاد، ٹھیک ہے، عربک کے ورڈ سے یہ ہے اس کا روٹ ورڈ، یہاں سے حیض کا لفظ بنا۔ اس کے معنی سمپل بہنے کے ہیں، لیکن جب اس کو شرعی جو اس کی تعریف ہے، شرعی جو اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو حیض کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ ٹرمز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ حیض عربک ورڈ ہے، اس کے معنی بہنے کے ہیں، ٹھیک ہے، سمپل۔ اس کے بعد اس کی شرعی ڈیفینیشن ہم دیکھیں گے، حیض کسے کہا جاتا ہے؟ حیض کہتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک لڑکی کے رحم سے عادت کے مطابق جو خون آئے گا، ٹھیک ہے، عادت کے مطابق، یاد رکھنا، عادت کے مطابق ہر مہینے جو خون آئے گا اس کو حیض کہیں گے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، یہ ڈیفینیشن۔ اور اس خون کی حیثیت کیا ہے؟ جو ریئلٹی آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل اس خون کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو شریعت میں اس کو آتھینٹک بلڈ کہا گیا ہے، یعنی اگر حیض کی حالت میں ہیں ہم، تو شرعی طور سے ہم سے کچھ احکام کو ہٹا لیا جاتا ہے، معاف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے معاف ہو جاتی ہے، روزہ ہے ان دنوں نہیں رکھنا ہے لیکن بعد میں قضا کرنی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان مسائل کو آگے پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو حیض ایک خاتون یا ایک لڑکی کو جو ہر مہینے عادت کے مطابق خون آئے گا اس کو حیض کہیں گے۔ ویلڈ بلیڈنگ ہے یہ، شرعی طور سے کچھ احکامات کی معافی ہمیں ملتی ہے۔
یہ ہے حیض۔ اب تھوڑا ہم یہاں پہ اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ حیض کی عمر کیا ہے، حیض آنے کی عمر کیا ہے۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کم سے کم ان یہ پوائنٹس وغیرہ جو ہیں ان کو آپ اپنی کاپی میں لکھتے رہیے کہ 9 سال کم سے کم جو عمر کہی ہے 9 سال، 9 سال ایج ہے حیض آنے کی، جس کو ہم پیریڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ جس کو ہم فیس کرتے ہیں وہ یہی حیض ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی پیریڈز جو ہم ہر منتھ جو ہم دیکھتے ہیں، ہر منتھ جو ہم فیس کرتے ہیں۔ کم سے کم ایج 9 سال ہونی چاہیے، اس سے کم اگر کسی کو کوئی خون دیکھتا ہے 9 سال کی عمر، 9 سال سے پہلے اگر ہم بلیڈنگ دیکھتے ہیں تو اس کو اس کیٹیگری میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے استحاضہ۔ تو 9 سال کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ ویلڈ ہوگی، اس کو ہم حیض میں شمار کریں گے، اس کو حیض مانا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون ہے جن کی عمر، ٹھیک ہے، 55 ایئرس ہے، 55 ایئرس، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 55 سال، 55 سال کی عمر تک حیض کا خون آ سکتا ہے، لیکن 55 سے اوپر اگر کوئی خاتون پھر بلیڈنگ دیکھے گی تو اس کو بھی ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں گے جو کہ انویلڈ مانا جاتا ہے، جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ حیض کی مدت کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے نفاس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لغوی معنی آج ہم دیکھیں گے، کل ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، یا بہتر ہے ہم تھوڑا حیض کو ہی آگے پڑھیں گے۔ ایک منٹ، کل نفاس کو پڑھیں گے، حیض ہی دیکھیے آپ۔ یہاں پہ دیکھیے حیض کی ڈیوریشن کیا ہے، مدت کیا ہے۔ حیض جو ہم نے پڑھا جو 9 سال سے اوپر ایج کے لیے ہے اور 55 کے اندر جو خون ہوگا اس کو حیض کہیں گے، ویلڈ بلیڈنگ ہے، اور ہر مہینے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی مدت کیا ہے، فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اس کی کم از کم 3 دن مدت ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اسی پہ ڈپینڈ ہے ہماری پاکی ناپاکی۔ ان جو ہم یہ ڈیوریشن پڑھیں گے، ٹائمز کو پڑھیں گے کہ کتنے دن، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ، ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے سائیکل کو اچھے سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ 3 دن، اب آپ اس کو یاد رکھیں گے کہ 3 دن جو بنتے ہیں یہ کم سے کم 72 آورس بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 72 گھنٹے بنتے ہیں یہ۔ تو اس سے کم اگر ہم بلیڈنگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی استحاضہ میں چلی جائے گی، جو کیٹیگری ہم نے رکھی ہے سائڈ پہ وہ اس میں چلی جائے گی، اور پھر ہم حیض کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ اچھا، یہ جو حیض ہے ٹرم، جو خاتون اس حیض کی حالت میں ہوتی ہے اس کو حائضہ کہتے ہیں، ہم اس ٹرم کا بھی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر حیض کم سے کم آپ نے 3 دن دیکھا تو آپ حائضہ کہلائیں گے، شرعی لحاظ سے آپ کو کچھ معافی وغیرہ ملے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ اس میں کیا رکھا ہے، ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، 10 دن، ٹھیک ہے، غور سے یاد رکھنا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی اس کو ایکسیپشن رکھا ہے کیس، وہ کیا ہے کہ 9 سال سے کم عمر کی اگر کوئی لڑکی ہوگی تو وہ حائضہ نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ 55 سال سے زیادہ کوئی ہوگی تو وہ بھی حائضہ نہیں کہلائے گی۔ یہ ہم تیسری کیٹیگری میں آپ کو پڑھاؤں گی جو ہم نے فرسٹ سلائیڈ میں دیکھی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب ہم اس میں کچھ مختلف مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ 3 دن جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک لڑکی جو ہے آج اگر
ब्लीडिंग स्टार्ट होती है किसी भी टाइम, 4 बजे रख लीजिए, असर के टाइम 4 बजे, 5 बजे। ऐसा नहीं है कि मुसलसल 72 घंटे या मुसलसल 3 दिन ब्लीडिंग रहनी चाहिए, बल्कि 3 दिन एक टाइम रखा है, उसके अंदर कभी 4 घंटे का वक्फा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज आप ब्लीडिंग देखें, कल पूरा दिन आप बिल्कुल साफ सुथरे रहे, लेकिन परसों आपने फिर से ब्लीडिंग देखी, तो ये जो कल का दिन है साफ सुथरा जो आपने देखा खुद को, ये भी हैज में ही शुमार किया जाएगा, इस दिन को पाकी में शुमार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि मुसलसल 3 दिन 3 रात आप ब्लीडिंग देखे तो ही माना जाएगा हैज है, नहीं, बल्कि बीच में वक्फा हो सकता है, बीच में आप खुद को साफ महसूस करेंगे, लेकिन और उसके बाद आप अगले दिन फिर से इस चीज को जब आप देखेंगे तो ये समझा जाता है कि ये तीनों दिन जो है ब्लीडिंग के हैं। और अगर किसी खातून ने 2 दिन उनको हैज आया, ठीक है, 2 दिन हैज आने के बाद वो तीसरे दिन उन्होंने देखा मैं बिल्कुल साफ रही, चौथे दिन भी देखा साफ रही, तो फिर ये माना जाएगा कि ये हैज नहीं है। इस चीज को समझना है। वो जो 2 दिन आपने छोड़े थे, गौर से सुनना है, जो 2 दिन आपने इस इंतजार में छोड़े थे कि शायद मुझे पीरियड्स हैं, शायद मुझे हैज है, लेकिन तीसरे दिन जब आपने ब्लीडिंग नहीं देखी, चौथे दिन भी नहीं देखी, आपने देखा ब्लीडिंग बंद हो गई है, तो उन 2 दिन की नमाज को आपको कजा करना है। ये बात अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। या इसी तरीके से एक दिन आपने ब्लीडिंग देखी और आने के बाद बंद हो गई, उसके बाद आपने देखा ही नहीं, कई दिन गुजर गए, तो उस एक दिन की आपको नमाज कजा करनी है, वो हैज नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये मसाइल बहुत अहम हैं कि इनसे हमारी इबादत जुड़ी हैं, और अगर हम इन मसाइल को नहीं समझेंगे तो इबादत में गफलत होगी, हमारी नमाजें छूटेंगी, हमारी जो भी दूसरे अहकाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, उनमें कोताही होती रहेगी, ठीक है। तो 3 दिन समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से 10 दिन रखा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन से ऊपर अगर आपने देखा, आपने 11वें दिन अगर ब्लीडिंग रही, तो फिर आपको 12वें दिन क्या करना है कि वो है, उस खून की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है जो आप 11th डे देखेंगे, जो आप 11वें दिन देखेंगे। 11वें दिन आपको हर नमाज के लिए नया वुजू करना है और नमाज पढ़नी है। ये जो बीच बीच में मैं थोड़ा सा हल्का सा कोई मसला बयान कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि हर नमाज के लिए वुजू करेगी, तो इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। तो 11वें दिन देखा, नमाज पढ़नी है। 12वें दिन इसके आगे जो भी आप देखते रहेंगे ब्लीडिंग, तो वो नॉर्मल है, वो इर्रेगुलर है, उस हालत में आपको नमाज माफ नहीं है, आपको नमाज अदा करनी है, दूसरे अहकाम को बजा लाना है। अच्छा, तो ये हैज की ड्यूरेशन थी। अब देखिए हम इसके कलर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हैज है, इस दौरान कौन कौन से कलर्स की आप देखेंगे तो समझना है कि ये ब्लीडिंग है, ठीक है। इसमें कलर्स भी हैं, रेड है, ब्लैक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्राउन है, ठीक है, तुर्क सियाह है, खाकी है, जर्द येलो है, और इसी तरीके से ग्रे है, सब्ज रंग ग्रीन भी वैलिड ब्लीडिंग है। ये बात याद रखनी है, इनमें से जिस कलर का भी आप अ, जिस कलर की भी आप ब्लीडिंग देखेंगे वो वैलिड ब्लीडिंग है, वो सही मानी जाएगी, ठीक है। इनमें से इसके अलावा अगर आप व्हाइट देखते हैं, व्हाइट कलर में देखते हैं, ठीक है, तो वो समझा जाएगा कि वो ब्लीडिंग नहीं है, फिर वो आप किसी भी दिन देखें। इसके अलावा ये जो 6 कलर्स यहाँ पे हैं, ये वैलिड खून में माने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तो 6 कलर्स हैं, इनको भी याद रखना है, और इसके अलावा अगर आप व्हाइट कलर को देखेंगे तो व्हाइट वैलिड नहीं है, ठीक है, उसको, चलिए अभी हमारे पास वक्त है, हम निफास को भी देखेंगे। इसके अलावा जो है
हैज में और भी बहुत सारे मसाइल आते रहेंगे आगे। चलिए हम इसको ही देखेंगे, बहुत अहम टॉपिक है, ये भी बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं आपको, एक मुब्तइदा है, एक मुअतादा है। गौर से सुनना, ये भी हैज से इसका ताल्लुक है, पीरियड से इसका ताल्लुक है, ठीक है, हैज से इसका ताल्लुक है। अब हम जब पढ़ते हैं हैज पीरियड वाली जो खातून, गौर से सुनना है इस टॉपिक को भी, या तो एक ऐसी लड़की होती है जिसने फर्स्ट टाइम इस चीज को फेस किया है, पहली बार उसको हैज आया, एक ये सिचुएशन होती है, एक ये हालत होती है। दूसरी हालत क्या होती है कि जिनको कई साल हुए पीरियड आए हुए, 1 साल 2 साल हुआ, उसको मुअतादा कहेंगे, यानी आदत वाली औरत है, जिनको 1 साल से पीरियड्स आ रहे, 2 साल से या 15 साल से, 12 साल से, ठीक है, उस खातून को मुअतादा कहेंगे कि वो एक ऐसी औरत है जिनकी अब हैबिट बन चुकी है, ठीक है। लेकिन कोई है जिसने अभी अभी फर्स्ट टाइम है, ठीक है, फर्स्ट टाइमर, एक ऐसी लड़की है जिसने अभी अभी हैज देखा, उसको मुब्तइदा कहेंगे। इसका मसला अलग होता है और इसका मसला थोड़ा सा अलग होता है। कहाँ पे इस चीज को हम पढ़ेंगे, देखिए अब पहली बार अगर किसी को ब्लीडिंग आई है तो जाहिर सी बात है ऐसी लड़की को थोड़ा सा इंतजार वाली हालत इनके साथ पेश आएगी। मिसाल के तौर पर पहली बार इन्होंने देखा कि 3 दिन ब्लीडिंग आई, ठीक है, साइकिल ठीक चल रहा है। इन्होंने देखा कि 10 दिन, ठीक है, 10 दिन तक इन्होंने देखा ब्लीडिंग आ रही है, तो ठीक है, माना जाएगा कि 10 दिन इनके क्या थे, हैज के थे। अब गौर से सुनना है, लेकिन अगर यही बच्ची देखती है कि 11वें दिन भी ब्लीडिंग हो रही है, तो 12वें दिन से फिर ये इर्रेगुलर माना जाएगा, ठीक है, ये हैज वाला खून नहीं शुमार किया जाएगा, बल्कि ये बीमारी है और इसको 11वें दिन से नमाज अदा करनी है, और ये 10 दिन जो है ये इसके हैज के माने जाएंगे। यहीं पे एक ऐसी लड़की है जिसको 2 साल से एक हैबिट बनी हुई है, 1 साल से एक हैबिट बनी हुई है, 3-4 साल से हैबिट, हैबिट क्या है इनकी, 6 दिन। इनको हर महीने 6 दिन पीरियड्स के हैं। देखिए उलझना नहीं है मसलों में, गौर से सुनना है, इत्मीनान से, बहुत आसान है बात है, ठीक है। ये बच्ची जो है जिनकी 6 दिन की आदत बन चुकी है, ये देखती हैं कि इस महीने मेरे जो पीरियड्स हैं वो 10 दिन आगे बढ़ गए हैं। वो देख रही है कि 11वें दिन भी पीरियड में है, ब्लीडिंग देख रही है। तो ऐसी बच्ची के लिए, चूंकि ये आदत वाली है, इनके साथ पहली बार ये मसला नहीं हुआ, इस ऐसी बच्ची को क्या करना है, इनको इस 6 दिन की आदत की तरफ जाना है, और 6 दिन के बाद जो इनके 4 दिन बचते हैं, इनको उन नमाज की कजा करनी है। गौर से सुनना है, मसला बहुत अहम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी एक हैबिट बनी हुई है और वो क्या है, 6 दिन है। लेकिन इन्होंने इस महीने देखा कि 11वें दिन ब्लीडिंग हो रही है, तो ये माना जाएगा कि 6 दिन इनके रेगुलर थे, पीरियड्स जो है हैज था, लेकिन उसके बाद इनको किसी बीमारी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है जो कि रेगुलर नहीं मानी जाएगी, और 4 दिन इनको जो नमाजें हैं वो कजा करनी है। यहीं पे एक दूसरा मसला, ये हो गया एक मसला। एक दूसरा मसला आप समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर कोई बच्ची है जिसका नाम हम रख लेते हैं आयशा, ठीक है। आयशा की हैबिट है 6 दिन। गौर से सुननी है एक दूसरी बात जिसको हम सब फेस करते रहते हैं, ठीक है, वो बात हम समझने जा रहे हैं। आयशा की आदत है 6 दिन, लेकिन यही आयशा देख देख रही है कि इस महीने, फॉर एग्जाम्पल जून के महीने में इन्होंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग 9 दिन हुई, ठीक है, या मुझे ब्लीडिंग 10 दिन हुई, 10 दिन ब्लीडिंग हुई, बंद हो गई, 11वें दिन नहीं हुई। मसला 11वें दिन का है, 11वें दिन इनको ब्लीडिंग नहीं हुई। इस आयशा की आदत क्या थी, 6 दिन।
लेकिन उन्होंने देखा कि मुझे इस जून के महीने में 9 दिन ब्लीडिंग रही, 10 दिन रही, 10वें दिन ये ठीक हो गई, तो माना जाएगा आयशा की हैबिट चेंज हो गई है, या कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में, कभी ऊपर नीचे साइकिल होता रहता है, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, 7 दिन, कोई भी मसला नहीं है। आयशा के ये पूरे 10 दिन माने जाएंगे कि ये हैज के हैं, गरचे इनकी आदत थी 6 दिन। आदत बदलती रहती है, इस बात को जहन में रखना है। आदत बदलती रहती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आदत जो बदल रही है वो 10 दिन के अंदर रहनी चाहिए। 10 दिन से ऊपर अगर आदत जा रही है तो फिर आपको अपने प्रीवियस, गुज़श्ता, पिछले पीरियड्स के दिन को देखना है। अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ मसला उस सूरत में होता है जब आपकी ब्लीडिंग 11वें दिन तक रहे। अगर 10 दिन के अंदर आपका साइकिल अगर चेंज हो रहा है, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, किसी महीने 9 दिन, किसी महीने 4 ही दिन रह रहा है, किसी महीने 6 दिन रह रहा है, कोई मसला नहीं है। वो 6 दिन हैज के माने जाएंगे, वो 8 दिन हैज के माने जाएंगे, वो 9 दिन हैज के माने जाएंगे। लेकिन अगर किसी महीने 11वें दिन भी ब्लीडिंग हो रही है तो माना जाएगा कि कुछ बीमारी है, कुछ नुक्स है, और फिर इस आदत की तरफ आपको जाना है कि ओ मेरा जो पिछला पीरियड था वो 6 दिन का था, या पिछला जो पीरियड था वो 4 दिन का था। तो इसका मतलब है 4 दिन मेरे हैज के थे, उसके बाद के जो दिन अभी तक हैं उनकी मुझे नमाज कज़ा करनी है। इस बात को याद रखना है। तो ये जो ऐसी बच्ची है जो हमने पढ़ी पहले नंबर पे, कि जिन जो पहली बार इस चीज को फेस कर रही हैं, तो उनके लिए हैबिट वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अगर वो 11वें दिन भी ब्लीडिंग देख रही है तो उनके 10 दिन हैज माने जाए, क्योंकि उनकी प्रीवियस कोई आदत नहीं है, उनका पिछला कोई पीरियड नहीं था। ठीक है, उनका पहला पीरियड यही था, लिहाजा उनके 10 दिन माने जाएंगे हैज के। अगर वो 11वें दिन भी ब्लीडिंग देख रही हैं तो उस दिन उनको फिर नमाज पढ़नी है। लेकिन ऐसी खातून जिसकी एक हैबिट बनी है, उसके साथ अगर 10 दिन के अंदर ये मसला कुछ भी साइकिल ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, वैलिड है, हैज हाइजा उसको शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर वही ये दूसरी कैटेगरी, दूसरे नंबर वाली खातून 11वें दिन देख रही है हैज, तो फिर उसकी आदत की तरफ, पिछली आदत की तरफ उसको जाना है। पिछले महीने जितने दिन हैज था उतने ही महीने उसको हैज माना जाएगा, उसके अलावा वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, इस्तिहाजा में उसको शुमार करेंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ इस स्लाइड में भी यही है कि आदत बदल जाना, और आदत बदलती रहती है, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आदत 11 दिन से ऊपर नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तोहर। ठीक है, तोहर। आज हम आज हमने जो मसाइल ज्यादा देखे वो हैज से मुतालिक देखे। अब मसाइल तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अहकाम क्या क्या है, कि हाइजा को कौन कौन सी चीजें माफ है, क्या है, वो हम इंशाल्लाह एक ही क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनको पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज। अब एक चीज है दूसरी, तोहर। तोहर को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तोहर किसको कहते हैं? प्योरिटी को। ठीक है, पाकी। पाकी जो है, इसकी भी ड्यूरेशन है। इसकी क्या है? कम से कम मुद्दत कितनी है? कम से कम पाकी कितने दिन की होती है? 15 दिन की, और ज्यादा की कोई हद नहीं है। तो ये तोहर जो होता है, ये पाकी जो होती है, ये क्या होती है? ये 2 हैज के दरमियान होती है। ठीक है, 2 हैज के दरमियान जो टाइम हमारा साफ सुथरा बचता है उसको तोहर कहते हैं। और फुकहा ने कहा कि कम से कम तोहर जो होता है वो मुद्दत जो होती है वो 15 दिन, ज्यादा नहीं हो, ज्यादा की कोई मुद्दत नहीं है। मिसाल के तौर पर आयशा, ठीक है, आज पीरियड में है, और पीरियड से साफ हुई, 15 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरने चाहिए, और 15 दिन के बाद दोबारा से जो खून आता है उसी को हैज कहेंगे। ठीक है, उसी को हैज कहेंगे। ये वैलिड खून है, जिसमें जो मैं बार बार बता बता रही हूँ। ठीक है,
दो हैजों के दरमियान कितना गैप होना चाहिए? कम से कम 15 दिन। अब ये आयशा है, ये आज पाक हो गई, पाक साफ हो गई, नमाज अदा की इन्होंने, ठीक है? अब इन्होंने देखा कि मेरे 10 दिन गुजरे हैं, कितने? अभी सिर्फ 10 दिन गुजरे थे। आयशा ने दोबारा ब्लीडिंग देखी, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये माना जाएगा कि ये हैज है? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दो हैजों के दरमियान ये है एक हैज, ये है एक हैज, दो हैजों के दरमियान कम से कम जो वैलिड, जो शरई लिहाज से जो तौहर है, पाकी है, उसको कम से कम कहा है 15 दिन होनी चाहिए। ज्यादा की कोई मुद्दत नहीं है। ज़्यादा आप 1 महीने भी पाक साफ-सुथरे रह सकते हैं, 2 महीने भी, किसी-किसी बच्ची को 3 महीने के बाद पीरियड्स आता है, किसी को आदत हवा कुछ खाना बदल जाता है, 4 महीने के बाद हैज़ आता है, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा पाक ही रहे तो कोई मसला नहीं है, 25 दिन, 30 दिन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कम की तरफ तवज्जो देनी है, कम से कम 15 दिन का गैप 2 हैज़ों के दरमियान रहना चाहिए। अगर 2 15 दिन गैप नहीं रहा, तो फिर ये माना जाएगा कि ये किसी बीमारी का खून है जिसमें नमाज माफ नहीं होती है, ठीक है? तो 10 दिन के बाद अगर कोई बच्ची साफ-सुथरा साफ हो गई, पाक हो गई, लेकिन वो अगर सिर्फ़ 10 दिन के बाद फिर से ब्लीडिंग देख रही है, तो उनको हर नमाज के लिए वुज़ू करना है और नमाज अदा करनी है। इसी तरीके से किसी ने देखा मैं आज साफ-सुथरी हो गई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ़ 13 दिन हुए थे, 13 दिन ही हुए थे, उन्होंने ब्लीडिंग देखी, तो उस लड़की को चाहिए कि वो हर नमाज के लिए वुज़ू करे और नमाज अदा करती रहे, क्योंकि वो हैज़ नहीं है, उसकी वो एक बीमारी का खून है जिसमें नमाज माफ़ नहीं होती है। तो तौहर पाकी की मुद्दत क्या है? कम से कम 15 दिन है और ज़्यादा की कोई मुद्दत नहीं है। मुझे लग रहा है कि हम यहीं पे अपनी बात को मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और कल हम निफास को पढ़ेंगे और निफास के साथ-साथ फिर हम अहकामात को भी पढ़ेंगे और तीसरी जो कैटेगरी हमने यहाँ पे रखी है इस्तिहाज़ा की, ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत अहम है।